A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. I hope you all are doing good. After playing well with words, now it's turn to imitate and learn it by heart. Okay? आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रीवियस वीडियोस में वर्ड्स से शब्दों से खेला एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले फर्दर फॉर योर कॉन्वर्जेशन. ओके, the most appropriate and the most accurate way for conversational English is this only. Yes, this approach. And if you are watching this video, please pause. Take a pause and listen to me for a minute. When you are starting, as I've told earlier, what you have to do, you have to first of all pick up the words, phrase, sentences, idioms, and fall in love with that. Start learning it by heart until it comes to your tongue. Okay? Mix and match it with your native language. Hindi, Telugu, Malayalam, whatever. Okay? And then what you have to do, if you are having any trouble to whom you are talking, अगर आपको कोई परेशानी हो रही कि मैं किससे बात कर रही हूँ, इसे तो इंग्लिश आती नहीं है ना, then what you have to do, आपको ही इंग्लिश भी बोलना है और आपको ही हिंदी भी बोलना है. ठीक है? It will make your conversation more smooth and it will boost your confidence. एक हाइप पे ले जाएगा. Okay? बिकॉज नो वन इज जजिंग यू. ठीक है? मिस्टेक से डरना नहीं है. दे आर द पाथवे फॉर सक्सेस. ठीक है? गलतियों से तो सीखेंगे हम, है ना? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर मिस्टेक्स. डोंट बी परफेक्शनिस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. पहले दिन से ही बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाना है, गलतियां करते रहना है. अलाउड. Mistakes are allowed. Critics are allowed. So, don't be scared of critics. Critics से बिल्कुल भागना नहीं है, डरना नहीं है, बचना नहीं है. Let the critics come into your way. चलिए. So, let's start playing with words and start our conversation with some basic questions या basic sentences. How's everything going? How's everything going? I repeat, how's everything going? और सब कैसा चल रहा है? Start playing with words. Good, great, one word. Now start playing more. Not accordingly, हिसाब से नहीं. Get into a positive approach. Everything's going great. I'm on cloud 9. Negative. Things have been a bit tough. But I'm managing. है ना? You started playing with the words and you are started framing a sentences, even a complex sentences. Now add depth. Let's learn some neutral tone also. It's going okay. It's going okay. Just usual. कुछ खास नहीं. Just now, idioms. How's everything going? On the right track. मतलब सब सही रास्ते पर चल रहा, सब सही सलामत चल रहा है. ईश्वर की कृपा है. गॉड ब्लेस. इट्स स्मूथ सेलिंग. इट्स स्मूथ सेलिंग. ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स. स्टार्ट मेकिंग ब्लॉक्स. ब्लॉक्स के गेम्स हम खेलते हैं ना,
बचपन से खेलते आ रहे थे, एक बॉक्स, वी हैव स्टार्ट अनदर बॉक्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर एक फ्रेम बना देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के. दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स. एक शब्द से लेके एक जटिल सेंटेंस हमने बनाए, और इवन वी आर यूजिंग इडियम्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग सिचुएशन है, अलग कैटेगरीज हैं, है ना. चलिए, let's come back to our topic and learn more basic sentences that are used daily. Uh, how's everything going? Done. Well, good, up to the mark, just sailing. Next could be, it's nice to meet you, or even you can say, it's nice to finally meet you. आपसे मिलना अच्छा लगा, या आपसे मिलकर आज अच्छा लगा. इसका अलग अलग टोन में, डिफरेंट सेटिंग्स में आप कैसे आंसर करेंगे. सिंपल सेंटेंस, लाइकवाइज, मी टू. स्टार्ट प्लेइंग, add some words, everything good, thanks, it's a smooth going, it seems as if my dreams come true, a dream come true, we finally met, we are finally in person. in person मतलब क्या होता है? इन पर्सन मतलब आमने सामने मुलाकात होना, है ना. जैसे किसी के बारे में बहुत सुना है, उनके बारे में बहुत जानते हैं, पर पहली बार आमने सामने जब मुलाकात होती फिजिकली, देन वी यूज टू से फाइनली इन पर्सन. इन पर्सन. ओके. फाइनली वी मेट, we are meeting in person. Finally we are meeting in person. Okay. What would you prefer? Tea or coffee? आप क्या लेना पसंद करेंगे? अगर आप, कुछ भी हो सकता है, अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, चाय लेंगे या नाश्ता लेंगे या डायरेक्ट लंच करेंगे, है ना, या किसी से आप कोई ऑप्शन पूछ रहे हैं, बच्चों से, वुड यू प्रेफर पिज़्ज़ा और बर्गर, है ना. दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन. व्हाट वुड यू प्रेफर, व्हाट वुड यू प्रेफर, या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या चाहते हैं. व्हाट वुड यू प्रेफर, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप क्या चाहते हैं, मतलब यू आर गिविंग ऑप्शंस. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. व्हाट वुड यू प्रेफर, पिज्जा और बर्गर. ओके. स्टार्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स. वन वर्ड, पिज्जा. I'm loving, I'm drooling. Burger, obviously. Drooling, लार टपकना. ठीक है. तो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आपको क्या महसूस हो रहा है, यू हैव टू प्ले विथ वर्ड्स लाइक दैट ओनली. फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो सब कुछ खाना पसंद है, देन व्हाट वी विल से, आई जस्ट can't deny anything. मैं किसी चीज़ के लिए नहीं मना कर सकती. I just can't deny anything. Anything you prefer. जो भी आपको ठीक लगे. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मतलब कुछ भी, है ना. Whatever's fine. Whatever's fine. This is how you have to say it. क्या कैसे बोलना है आपको? Whatever's fine. जो ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना. whatever's fine, जो भी ठीक है. whatever's fine. ठीक है. अच्छा, आप रेडी हैं, समवन हैज़ गिवन यू कॉम्प्लीमेंट, किसी ने आपकी तारीफ की, यू आर लुकिंग फैबुलस, देन यू हैव टू से बेसिक थैंक्स. ओके. अगर आपको रिप्लाई करना है, अगले को भी कॉम्प्लीमेंट करना है, देन यू कैन से यू आर लुकिंग टू.
and you can use so sweet of you, so sweet of you. You can say you are such a sweet you. Informal, very polite. So it depends from person to person, situation to situation. चलिए if अगर हम मिलते हैं, कहते हैं ना, this is very most common. I had given them at 3 star, which let's unwind somewhere. Let's चलो कहीं घूम कर आते हैं. Let's unwind somewhere. कहीं घूम कर आते हैं. इट्स नॉट स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है, कहीं घूम कर आते हैं. सो हम क्या कहेंगे, लेट्स अनवाइन समवेयर या लेट्स अनवाइन समवेयर. या इसी को दूसरी भाषा में हम कैसे बोल सकते हैं, वेयर कैन वी अनवाइन, कहाँ घूम सकते हैं यार. ऐसे हम बोलते हैं ना शाम को, या अपनी फ्रेंड्स मिलते हैं, या चलो कहीं घूम कर आते हैं. दिस इज वेरी 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 कॉमनली यूज्ड. सो हाउ यू विल से, ए कैसी हो, हाउ आर यू, लेट्स अनवाइंड समवेयर. ओके, फिर इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. हाउ अबाउट कॉफी शॉप, हाउ अबाउट कॉफी शॉप. कैजुअल है ना, फ्रेंड्स के बीच में, जान पहचान के बीच में. लेट्स फाइंड अ क्वाइट स्पॉट, कहीं शांति में बैठते हैं यार, यहाँ वहाँ बहुत रश होता है. So let's find a quiet corner. अब you started playing with words, ठीक है. Spot, corner. Let's find a quiet spot. Let's find a quiet corner. Let's find a quiet peaceful place. Now you started playing with the words. हाँ, चलिए. So let's frame it in a sentence. A walk in the park. A walk in the park sounds nice. चलो पार्क में घूम कर आते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा. A walk in the park sounds nice. अरे sit down, अरे take rest, let's gossip. अरे बैठो यार, चलो कुछ गप लगाते हैं. stay back, यहीं रुको भाई, अभी रुको, stay back, अभी रुकिए, let's gossip. फिर हम कुछ बातें कहते हैं, चलिए फिर मिलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं. लेट्स कैच अप सून, लेट्स कैच अप, मिलते हैं, चलो फिर जल्दी मिलते हैं. लेट्स कैच अप सून, फ्यूचर प्लान्स के लिए. लेट्स कैच अप सून. अगर अगला कह रहा चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं, लेट्स मूव, लेट्स मीट, या लेट्स कैच अप, या जल्दी मिलते हैं, लेट्स कैच अप सून. आप कैसे रिप्लाई करेंगे, ओह डेफिनेटली, लेट्स प्लान समथिंग सून, चलो कुछ जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं, मिलते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली. सो दीज आर द वेरियस सेटिंग्स जिसमें आप डिफरेंट टोन्स में, डिफरेंट वेरिएशंस में आंसर देंगे, ठीक है. चलिए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, किसी आप फैमिली गैदरिंग में हैं या इनफॉर्मल फॉर्मल सेटिंग्स में भी हैं. कई बार होता है ना, फिर हम कहते हैं ना, आपको पहचाना नहीं, सॉरी आपको पहचाना नहीं. सो हाउ यू विल से, एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिडंट रिकग्नाइज यू. किसी से आपने पहचाना नहीं, हाउ विल यू से, सॉरी आई डिडंट रिकग्नाइज यू, मैं आपको पहचान नहीं पाई, माफ़ कीजिएगा. द लैंग्वेज शुड बी वेरी पोलाइट, ठीक है. सॉरी आई डिडंट रिकग्नाइज यू, मैं आपको पहचान ना सकी. आपको यदि कोई कहता है अरे मैं आपको पहचान नहीं पाई, बी वेरी पोलाइट, बी वेरी काम. ये नहीं करी मुझे पहचाना नहीं, नो, नॉट लाइक दिस. स्टे काम एंड व्हाट यू हैव टू से, नो वरीज, इट्स बीन अ व्हाइल, नो वरीज, इट्स बीन अ व्हाइल. ऐसे ही एक्सप्रेशन लाना है. नो वरीज, इट्स बीन अ व्हाइल, एक लंबा समय है, बीत गया यार. इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नो सी, इतना लंबा समय बाद अपन मिल रहे हैं. या इवन यू कैन गिव द आंसर, आई हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस वी लास्ट मेट. जब पिछली बार मिले थे उससे तो मैं कितना चेंज हो गई. आई स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी एंड ऑल, दैट टाइम आई वॉज अनमैरिड. नाउ आई एम मैरिड, आई एम वेयरिंग साड़ी एंड ऑल. So obviously I have changed a lot since we last met now I have got a kids. Now you started playing with the sentences and with the words.
एक छोटे से सेंटेंस को आप इफ़ यू आर गोइंग ऑन स्मूथली आप फ्रेम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, चलिए और कुछ फ्रेम करते हैं। सॉरी आई डिडंट रिकग्नाइज यू। आंसर, no worries, I've changed a lot since we last met. Now I got married. That time I was in my college. Now I have got 2 kids. I have become more responsible too. So now likewise you will start speaking. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब स्मूथली फ्रेम करने लगे सेंटेंसेस. वंस इट विल कम इनटू योर टंग, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एंड स्टार्ट फ्रेमिंग. Okay, so these are some of the basic sentences, basic phrases and idioms. Please beta, just don't forget. don't बिल्कुल पाप है. गलती, जब आप कोई सेंटेंस भूलेंगे, दैट इज कॉल्ड गलती, मिस्टेक. बट अगर आप इडियम भूल गए, वो विल बी पाप फॉर कॉन्वर्जेशन. ठीक है. मिस्टेक्स कुड बी करेक्टेड, करेक्ट हो जाएगा, करेक्शन हम कर लेंगे. बट आप अगर गड़बड़ कर देंगे देन दैट कैन, वो नहीं अमेंड हो पाएगा. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट idioms. You can write in your copies and go through the idioms and start to paste it wherever necessary. अलग अलग situations में कोई idiom आप याद करते हैं ना, तो start giving answer to yourself कि कहाँ कहाँ पे हम इस particular idiom को हम use कर सकते हैं. जैसे for example, I've used I'm on cloud 9. ये अगर किसी ने आपसे पूछ भी लिया कैसे हो, I'm on cloud 9. How's everything going? कैसा सब चल रहा है? I'm on cloud 9. सब बढ़िया. ठीक है. So, और तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी शादी हो रही है? I'm on cloud 9. अरे वाह, उसके तो यार देखो क्या हवा में उड़ रही है, इतनी अच्छी जॉब है. She's on cloud 9. अलग अलग सिचुएशंस में we are using the same idiom. For example, चलिए हम पूछते हैं, I'm on the mend. ऑन द मेंड मतलब वही रिकवरी फ्रॉम एनी इलनेस और इंजरी. अरे अब आपकी तबीयत कैसी है? आई एम ऑन द मेंड. आप रिकवर कर रहे हैं, आई एम ऑन द मेंड. अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी थी? उस दिन आप हॉस्पिटलाइज थी, यू इन द हॉस्पिटल. नाउ हाउ यू फीलिंग? आई एम ऑन द मेंड. अरे बहुत दिन बाद आप दिखाई दी, अब ठीक लग रहा है? आई एम ऑन द मेंड. What brings you here? हमने क्या पढ़ा था? Just catching up with friends. अरे बस यूं ही अपने दोस्तों के साथ. Just catching up with friends. Just catching up with family. Just catching up with my close relatives. Just catching up with our old friends. Just catching up with our college friends. Just catching up with our office colleagues. Oh my God, my pen friends are coming. I'm feeling nostalgic. I'm on cloud 9. So, हमने दो idioms को mix कर दिए, है ना? My पेन फ्रेंड्स मतलब होते हैं बचपन का सहपाठी, एग्जैक्टली जो आपकी क्लासमेट होता है, दे आर कॉल्ड पेन फ्रेंड्स. माय पेन फ्रेंड्स, वी आर कैचिंग अप विथ पेन फ्रेंड्स. आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें. आई एम ऑन क्लाउड 9. इतना बहुत 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 खुशी हो रही है. ठीक है. सो दीज आर, जैसे कहीं घूमने जाना, लेट्स अनवाइंड समवेयर. अगर चलो मिसेस शर्मा के यहाँ घूम कर आते हैं, लेट्स गो टू मिसेस शर्मा. सो होप you must have understood how to use any sentence or any idioms and how to insert and incorporate them with the sentences and how to play with idioms and words. Hope you would love the video. So please do share my video and please do comment in comment section. आप किस situation में
रहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन किन सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है, सो दैट वी कैन फ्रेम सच सेंटेंसेस फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू द मोस्ट डेप्थ लेवल. Okay, so keep watching, keep tuned. Please do share my video. Keep on watching. Bye bye.